Hello, welcome back. I am Shweta and today we are going to see practical of computerized accounting with GST. As per the COVID-19 situation, from computerized accounting with GST, you have to perform only one practical. Okay, total there are 4 practicals in this chapter, but during this situation you have to do only one practical. So we are going to perform practical number 1, that is SOP 1. SOP 1 we are going to do. This is the company creation and voucher entry. Okay, so this is very simple question. So we are going to perform only this for the practical exam. आपको सिर्फ यही क्वेश्चन करना है बोर्ड एग्जाम्स के प्रैक्टिकल्स के लिए. ओके, फॉर बोर्ड एग्जाम्स from Tally, or you can say from accounting software chapter, you have to perform only this practical. Means you have to do or practice only this practical. So only this practical is going to come in exam if it is asked from the computerized accounting chapter. In this chapter, you have to, what you have to do, you want to create company as well as there is a transaction entry also. Now, in your TPS, I hope you all are having TPS. So in TPS, at the back side, you are having the practical handbook also. In that practical handbook, the question means if you see the steps for this question, for computerized accounting chapter, if you go in that handbook and see the practical of this computerized accounting chapter, in that the first SOP is given. In that first SOP, steps are also given. Okay, so what you have to do, wherever you have written all the practicals in the book, आपने प्रैक्टिकल का बुक मेंटेन किया. आई होप कि आपने मेंटेन किया होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था फ्रॉम HTML चैप्टर ओनली आई टोल्ड यू दैट यू हैव टू राइट प्रैक्टिकल्स इन योर rough book or in any book, and afterwards whenever you're getting the journal, in that journal you have to copy all the practicals which we have performed. Okay, so all practicals you have to not write which practicals which we have performed. आपके बुक में तो बहुत सारे दिए हैं, लेकिन आपको सब नहीं करना है. Because of this COVID-19, only 5 practicals you have to, 5 or 7 practicals, only 7 practicals you have to do. So I think I have taught 3 practicals from HTML chapter, 2 from database, 2 from database, or only one. I have taught 2 from database, but you have to do only 1. All the things I am going to tell you later, but जो करना है वो मैंने आपको एक practicals में बताया है. Okay, but after finishing all the lessons, I will once again revise everything for the exam pattern, what is the exam pattern and which practicals you have to do. But I have told you you have to write this practicals in your book. So from accounting chapter also you have to write only this practical. आपको accounting chapter का सिर्फ यही practical perform करना है, फर्स्ट वाला. बाकी कोई भी practical आपको book में नहीं लिखनी है. In this practical, I am just going to show you this practical practically. Okay, मीन्स मैं आपको सिर्फ टैली में कैसे करते हैं इस प्रैक्टिकल को वो दिखाने वाली हूँ, बट स्टेप्स यू हैव टू राइट. इसका स्टेप्स आपको एग्जाम में लिखना भी पड़ता है, तो वो स्टेप्स आपको ये क्वेश्चन के साथ में बुक में लिखना है. फर्स्ट यू हैव टू राइट दिस होल क्वेश्चन इन योर बुक, जहाँ पे आपने सब प्रैक्टिकल्स लिखे रहेंगे, उसके साथ ये भी प्रैक्टिकल आपको आपके बुक में लिखना है. ये क्वेश्चन लिखने के बाद आपको इसके स्टेप्स लिखने हैं. तो आपके पास TPS का हैंडबुक रहेगा, वहाँ पे प्रैक्टिकल हैंडबुक है लास्ट में, उसमें से आप ये क्वेश्चन का स्टेप्स भी लिखो. यहाँ पे मैंने आपको स्टेप्स नहीं दिए हैं, मैं डायरेक्टली आपको प्रैक्टिकल करके दिखाने वाली हूँ. स्टेप्स आपको खुद लिखने हैं, आपके TPS में दिया होगा, सो दैट स्टेप्स आपको कॉपी करने हैं. ओके, सो नाउ वी विल जस्ट स्टार्ट द क्रिएशन ऑफ कंपनी इन टैली. ओके, नाउ सी व्हाट इज दिस SOP. यहाँ पे क्या बोला है, मिस्टर रविंद्र कुमार स्टार्टेड बिजनेस बाय द नेम MS Bitwise ट्रेडिंग कंपनी इन द ईयर 2019. सो किसने कंपनी चालू किया, रविंद्र कुमार ने. ओके, कंपनी का नाम क्या है, MS Bitwise ट्रेडिंग कंपनी. कौन से ईयर में चालू किया, 2019. कंपनी के सारी डिटेल्स यहाँ पे दिए हैं. Okay, companies all details are given here. So whenever we are creating company, the name of that company will be what, MS Bitwise Trading Company, and address of that company will be 102 MG Road, Bhavna Nagar, Latur 413512.
state is Maharashtra, website is www.bitwisetrading.com, and email ID is info@bitwise.com. मेंटेन अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री, यहाँ पे आपको अकाउंट विथ इन्वेंट्री मेंटेन करना है. Financial year is 1st April 2019 and the books also starts from 1st April 2019. Okay, so this is the company part, means you have to write all the details of these companies while you are creating the company. With the help of any open source or free education version accounting software, pass the following transactions in appropriate vouchers to display and print various reports. सच एज ट्रायल बैलेंस, मीन्स आपको कौन सा प्रिंट आउट लेना है. एग्जाम में अगर आपको ये क्वेश्चन आया तो पूरा होने के बाद आपको प्रिंट आउट्स कौन से लेने हैं. ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एंड डे बुक, ये सब के आपको प्रिंट आउट्स लेने हैं. ओके, सो now let us begin. First we will just create this company, then we are going to see this voucher entries. So you know, first you are creating company, then the next step is creating of ledgers, and then lastly we are doing the voucher entries. So even if you want to create voucher entry and ledger entry at a time, that also we can do. ओके, अगर आपको वाउचर क्रिएशन करते समय ही लेजर एंट्री करना है तो वैसे भी हम लोग कर सकते हैं, या फिर हम लोग कंपनी क्रिएट होने के बाद लेजर अकाउंट्स बना के वाउचर एंट्रीज कर सकते हैं. ओके, सो लेट अस सी. आई हैव स्टार्टेड टैली. So which option I'm going to click? I'm going to click on Alt W. W के नीचे underline है, so I'm going to click what? Alt W. What is this? This is work in educational mode. We are studying for the educational mode, so we are going to click this educational mode. Okay, so click this. Okay, so now see here, no company is displayed, but if I want any company to be displayed, I will just click on select company, and this are the companies which I have created in my Tally account. तो मुझे ये सब companies दिख जाएंगे. Okay, so but I do not want to create any company, means I do not want to create any ledgers in this companies. मुझे नया company ही create करना है. Okay, so I'll just come out of this. I will press escape. Then again I will now here see the option, third option is there, create company. So what I will do, I will click on this option. Click on create company option. Okay, so what was the name of the company? It is MS Bitwise, right? What is the name of the company? MS Bitwise Trading Company. Bitwise Trading Company. Okay, then alias means mailing name, or mailing name can be same, or if you want different you can write different. So I'm just going to keep the same name. Address, what is the address? I think 102 is given. Then MG Road, Bhavna Nagar, Latur. MG Road, Bhavna Nagar, Latur. Okay, now this is in country India only, and state is Maharashtra. So you can write MAH, and by default it shows you Maharashtra. So you can directly press enter button. Okay, now pin code. What is the pin code? Pin code is also given. What is the pin code? Pin code is 413512. So what I will write? I will write 412513. What was the pin code? Let me see once again. 413512. Yes, 413512. Press tab, press tab, press tab, press tab. So email ID is also given. What is the email ID? info@bitwise.com. So info@bitwise.com. Okay, then what is the website name? bitwisetrading.com, right? So bitwisetrading.com. Okay, so this information has been created, and financial year it starts from 1st April 2019,
right? It is 2019 and books also begins from the same year. So this is all what we created. Now here only the one information which they have told, that is maintain accounts with inventory. It is not mentioned in this tally. This is tally ERP9. In ERP9 maintain accounts is option is not available. But अगर आप previous version में कर रहे हो, टैली ERP9 नहीं है और आप टैली 7 में वगैरह कर रहे हो, तो इन दैट केस व्हाट हैपेंस, यहाँ पे अकाउंट्स मेंटेन करके भी ऑप्शन आता है. ओके, इन दैट केस अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री करना है या अकाउंट्स ओनली करना है, दैट ऑप्शन यू हैव टू सेलेक्ट. नाउ इन दिस क्वेश्चन इट इज ऑलरेडी गिवन कि आपको मेंटेन अकाउंट विथ इन्वेंट्री करना है. सो बाय डिफॉल्ट दिस इन टैली ईआरपी बाय डिफॉल्ट इट इज what it is maintain accounts with inventory ही है. लेकिन if you want to see whether it is accounts only or maintain with accounts with inventory, then we will see that also. Let us create first this company. Yes, we have created the company. So see, the Bitwise Trading Company has been created. Now if you want to see that whether that accounts only is there or not, so I will just click on this what F12. okay, F12 configuration में मैंने click किया. So here this accounts inventory info is there. Here that option is not given. Okay, so let it be. Just come out. Okay, sorry. So no need, no tension on general entry. In general entry it is also not showing us. So voucher entry. Okay, in voucher entry it is also not showing. So okay, no problem. So it is accounts with inventory only. That option is not given over here, accounts with inventory. Okay, so we are going to do tally ERP9 only, means in our college also we are going to do practical in tally ERP9 only. So there will be no option of maintain accounts. If it is there, that also I will tell you in college if it is there. But if you are using tally ERP9, that option will be not there. Okay, so don't worry about that we do not want to do anything. So what the first step we have done, we have created our company. Okay, company creation हो गया. Now see, आपको कैसे पता चलेगा कि accounts with inventory है कि नहीं? That is one thing. See this inventory info, can you see? ये inventory info तभी रहता है जब accounts मेंटेन के अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री होगा. ओके, अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री अगर मेंटेन में आता है तो ये इन्वेंट्री इन्फो आपको दिखेगा. अगर मेंटेन में अकाउंट्स ओनली है तो ये इन्वेंट्री इन्फो आपको नहीं दिखता है. ओके, फ्रॉम दिस वी कैन से दैट यस कि अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री ही प्रेजेंट है. ओके, नाउ व्हाट इज अवर नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप इज वी वांट टू पास दिस ट्रांजैक्शन एंट्रीज. ओके, आपको ये ट्रांजैक्शन एंट्रीज पास करना है वाउचर में. So there are two ways. Either you can do first ledger creation or also we can do what, while creating voucher entry, that time also we can do the ledger entries. Okay, आप दो ways में कैसे भी कर सकते हो. यहाँ पे आपको डेट भी दिया है. So we want to change the date, we want to do this entry and we want to enter the amount also. Now the first question or first transaction is 1st April 2019 Mr. Ravindra Kumar started business with cash. सो रविंद्र कुमार ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश से. ओके, कैश से बिजनेस स्टार्ट किया कितने रुपीस दे के? 5 लाख. ओके, विथ ही रविंद्र कुमार स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश यूजिंग हाउ मच अमाउंट? 5 लाख. यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है? कैपिटल अकाउंट. यहाँ पे कैपिटल अकाउंट के लिए मनी, कैपिटल अकाउंट के लिए मनी, कैपिटल अकाउंट इज गिविंग मनी, सो इट इज क्रेडिटेड. ओके, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपको कैपिटल अकाउंट बनाना है और कैश अकाउंट. कैपिटल अकाउंट आप मनी दे रहा है किसको? कैश को. ओके, कैश अकाउंट को. सो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट जो होगा वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा. राइट, कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड एंड कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड. बिकॉज आपको रूल पता है क्या होता है? क्रेडिटेड मीन्स व्हाट? जो देता है. द वन हु गिव्स द मनी इज क्रेडिटर एंड द वन हु receives the money is debitor. Okay, so debtor means the account gets debited and credited. तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट
पैसा दे रहा है कैश अकाउंट को, बराबर है, क्योंकि हम लोग कैपिटल अकाउंट से पैसा किसको दे रहे हैं, कैश अकाउंट को। तो कैपिटल अकाउंट इज व्हाट, डेबिट, एंड कैश अकाउंट इज क्रेडिट। ओके, नाउ यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो यहाँ पे पैसा क्या हो रहा है, रिसीव, हम लोग कैश अमाउंट रिसीव कर रहा है पैसे को। ओके, तो हम लोग को क्या मिलेगा, यहाँ पे हमको कौन सा एंट्री करना है, for this we have to do the receipt entry, voucher entry। voucher entry में कौन सा voucher entry आपको करना है, receipt voucher entry। so what we will do, I will show you in both way। okay, you know ledger creation, directly हम लोग ledger creation करना रहेगा तो accounts info में जाके we are creating ledgers, right, and we are clicking on this single ledgers, in that you are doing the ledger entry। सो आई विल शो इन बोथ वेज, कहाँ पे मैं लेजर एंट्री, कुछ इसमें मैं लेजर एंट्री यहाँ पे करती हूँ और बाकी हम लोग वाइल क्रिएटिंग वाउचर एंट्रीज भी करेंगे, या फिर आप सारे लेजर एंट्री एक साथ कर सकते हो। सो हम लोग बनाएंगे कैपिटल अकाउंट, जस्ट क्रिएट कैपिटल अकाउंट। ओके, कैपिटल अकाउंट, इसका अंडर ग्रुप क्या आता है, कैपिटल अकाउंट ही होता है। सो जस्ट प्रेस टैब 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 टैब, no other information is given, so we'll just press tab। okay, then yes, you want to create it, so we have created capital account। see, there is no need of creating cash account। यहाँ पे कैश भी है, कैश अकाउंट में पैसा जा रहा है, तो यहाँ पे हमको कैश अकाउंट बनाना पड़ेगा क्या, नहीं। यू शुड रिमेंबर दिस थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको एग्जाम में पूछा विच टू एंट्रीज आर बाय डिफॉल्ट प्रेजेंट और क्रिएटेड, तो वो होता है कौन से दो लेजर्स ऑलरेडी रहते हैं। जब हम कोई भी कंपनी बनाते हैं तो दो लेजर्स बाय डिफॉल्ट बन जाते हैं, दैट इज कैश अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, सी ग्रुप्स जो होते हैं, अंडर ग्रुप्स जो होते हैं, ये यहाँ पे जो ग्रुप्स होते हैं ये ऑलरेडी क्रिएटेड है। देर आर 28 ग्रुप्स, आई हैव टोल्ड यू, आई हैव डिस्कस्ड ऑल दिस थिंग्स व्हेन वी हैव स्टार्टेड अवर चैप्टर। सो ये जो कैपिटल अकाउंट, परचेस अकाउंट, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस, ये जो है ये हम लोग ने देखा है। So ये जो groups होते हैं they are already built in। okay, how many groups are there, there are 28 groups। from that what we can say, from that some are predefined and some are what, subgroups। some are predefined groups means कुछ already हम लोग ने ये groups को define किया है। all groups are predefined only, all 28 groups are predefined, from them primary groups are there and subgroups are there। then बट सो देर इज नो नीड ऑफ क्रिएटिंग एनी ग्रुप, हम लोग कभी ग्रुप्स नहीं बनाते, हम लोग सिर्फ क्या बनाते हैं, लेजर्स बनाते हैं, बराबर है। नाउ लेजर्स में भी जब कोई कंपनी हम लोग क्रिएट करते तो दो लेजर्स ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाते हैं। ओके, whenever we are creating any company, that time two ledgers gets created automatically। which ledgers are they? They are cash account and profit and loss account। okay, so cash account and profit and loss accounts, they are created by default once the company is created। so there is no need of creating cash account and profit and loss account। okay, so we will move further। so हम लोग ने फर्स्ट ट्रांजैक्शन का एंट्री कर दिया। ओके, फर्स्ट ट्रांजैक्शन का एंट्री नहीं किया है हम लोग ने। फर्स्ट ट्रांजैक्शन के लिए जो लेजर्स लगने वाले थे, कैश तो ऑलरेडी बना हुआ है और कैपिटल अकाउंट का लेजर हम लोग ने बना दिया। ओके, सो व्हाट वी विल डू, we will now create next ledger। okay, अगर आपको चाहिए तो आप ledgers बना लो, या फिर हम लोग वाउचर एंट्रीज में भी बना सकते हैं। एक काम करेंगे, हम लोग लास्ट में लास्ट केस को देखेंगे कि वाउचर क्रिएशन के टाइम पे ledgers कैसे क्रिएट करते हैं। इसका हम लोग लेजर बना देते हैं। ओके, परचेस्ड गुड्स फ्रॉम श्रद्धा स्टील वर्क्स ऑन क्रेडिट। नाउ सी दिस परचेस्ड गुड्स फ्रॉम श्रद्धा स्टील, तो परचेस गुड्स क्या होता है, ये परचेस अकाउंट में जाएगा, बराबर है, और श्रद्धा स्टील, तो हम लोग श्रद्धा स्टील से ले रहे हैं। सी, तो फ्रॉम श्रद्धा स्टील से हम लोग ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट मीन्स यहाँ पे पैसा नहीं दे रहा है, पैसा उसका वो फ्यूचर में पे करेगा, या फिर कुछ भी एडजस्टमेंट होगा वो उसको वो करेगा। ओके, यहाँ पे ऑन क्रेडिट ले रहे हैं, पैसा पे किया है क्या, नहीं। कौन सी कंपनी ने, बिटवाइज कंपनी ने गुड्स खरीदे श्रद्धा स्टील से। ओके, तो श्रद्धा स्टील यहाँ पे क्या हो गया, हम लोग ले कहा किससे ले रहे हैं, श्रद्धा स्टील से, तो हम बिटवाइज कंपनी पे कर रहा है। ओके, सो पेमेंट हम लोग बिटवाइज कंपनी कर रहा है, तो
श्रद्धा स्टील क्या आ जाएगा, श्रद्धा स्टील विल बी सेंड्री क्रेडिटर, ओके, सेंड्री क्रेडिटर। और परचेस अकाउंट्स, परचेस गुड्स, परचेस अकाउंट का हम लोग परचेस अकाउंट बनाएंगे, ओके। तो यहाँ पे दो वाउचर्स बनेंगे, सॉरी नॉट वाउचर्स, दो लेजर्स बनेंगे, परचेस्ड और स्टील, श्रद्धा स्टील, ओके। सो लेट अस क्रिएट दैट लेजर्स। आई एम गोइंग टू क्रिएट परचेस अकाउंट। यहाँ पे अंडर ग्रुप क्या आएगा, परचेस अकाउंट का परचेस ही रहेगा, ओके। देन प्रेस टैप टैप एंड यस, ओके। नेक्स्ट वन इज व्हाट, श्रद्धा स्टील, श्रद्धा स्टील, ओके, श्रद्धा स्टील अकाउंट। नाउ श्रद्धा स्टील अकाउंट मीन्स यहाँ इससे हम लोग खरीद रहे हैं, तो ये क्या होता है, सेंड्री क्रेडिटर। सो आई क्लिक दिस सेंड्री क्रेडिटर, देन वी हैव डन विद दिस। We have created this ledger also. Now see the next one, paid salary to staff. So यहाँ पे हम लोग सैलरी स्टाफ को पे कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे कैश या चेक ऐसा बोला है क्या, नहीं, तो हम लोग सैलरी दे रहे हैं मीन्स कैश में ही दे रहे हैं, ऐसा समझना चाहिए, ओके। सो यहाँ पे हम लोग को किसका अकाउंट बनाना पड़ेगा, अभी हम लोग को सिर्फ सैलरी, ओके। सो यहाँ पे हम लोग को सैलरी अकाउंट बनाना पड़ेगा, ओके। तो सैलरी अकाउंट कौन से ग्रुप में आएगा, सो हियर वी आर गोइंग टू क्रिएट व्हाट, सैलरी अकाउंट। सो सैलरी अकाउंट हमेशा किस में रहता है, जो भी अकाउंट ऑफिस से हम लोग जो पैसा देते हैं दैट विल बी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, राइट। सो द दिस अंडर ग्रुप विल बी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, thus we have created this also, ओके। सो हम लोगों ने इस थर्ड ट्रांजैक्शन में से सैलरी का लेजर बनाया, ओके। सो यहाँ पे कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑफ इंडिया, कैश डिपॉजिटेड, कैश अकाउंट इज ऑलरेडी देयर, हमको बैंक ऑफ इंडिया बनाना है, ओके। सो बैंक ऑफ इंडिया का हम लोग क्या करेंगे, बैंक ऑफ इंडिया का हम लोग बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट, ओके। आई एम राइटिंग शॉर्टकट BOI, दैट इज बैंक ऑफ इंडिया। तो ये इसका अंडर ग्रुप क्या आएगा, बैंक अकाउंट, बैंक ऑफ इंडिया इज व्हाट, बैंक अकाउंट। सो हमको ग्रुप लेना है अंडर ग्रुप बैंक अकाउंट, ओके। सो एवरीथिंग इज देयर, ओके। सो दिस आल्सो वी हैव क्रिएटेड। Now the next step is, now the next ledger is sold goods to Rakesh Enterprise on cash. Now here we are selling goods, so sales account आएगा, purchase account है तो purchase और sales कंपनी हमेशा मेंटेन करता है, तो यहाँ पे sales account आएगा। कोई कोई राकेश एंटरप्राइज अकाउंट भी बना सकते हैं, लेकिन इट इज़ गुड प्रैक्टिस टू, इफ परचेस अकाउंट इज देयर देन यू हैव टू क्रिएट द सेल्स अकाउंट इंस्टेड ऑफ राकेश एंटरप्राइज अकाउंट, यू कैन क्रिएट सेल्स अकाउंट। यहाँ पे हम लोग सेल्स अकाउंट बनाएंगे, और कैश तो ऑलरेडी है, कैश अकाउंट तो ऑलरेडी है, तो राकेश एंटरप्राइज बनाने का जरूरत नहीं है। अगर आपने राकेश एंटरप्राइज अकाउंट बनाया देन ऑल्सो देर इज नो हार्म, बट इंस्टेड ऑफ दिस वी विल, आई एम क्रिएटिंग सेल्स अकाउंट, ओके। सो हम लोग अभी सेल्स अकाउंट, sales account, okay. Now your under group will be sales, okay. This also we have created. Now see the next one, purchased machinery, okay. So machinery there is no need, purchased machinery means purchase account ही आने वाला है, और हम लोग कैश से पैसा देंगे, so यहाँ पे आपको कोई भी बनाने का जरूरत नहीं। मशीनरी विल बी दिस, वी कैन क्रिएट, कोई कोई मशीनरी अकाउंट बनाता है, लेकिन देर इज नो नीड, क्योंकि यहाँ पे फिर स्टॉक आइटम में प्रॉब्लम आ सकता है। अगर आपने मशीनरी अकाउंट बनाया तो आपको स्टॉक अकाउंट में प्रॉब्लम आएगा, और परचेस वाउचर एंट्री में वो परचेस को ही लेता है, मशीनरी अकाउंट को नहीं लेगा। सो परचेस के लिए परचेस अकाउंट ही चाहिए, ओके। सो रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन कैश डिपॉजिटेड इन बैंक ऑफ इंडिया। नाउ यो दिस ट्रांजैक्शन, ये जो इंटरेस्ट रिसीव्ड है ये हमको लेजर बनाना है, लेकिन ये लेजर में आपको वाउचर एंट्री में कैसे बनाता है, मीन्स हम लोग को ये भी आना चाहिए कि वाउचर एंट्री क्रिएशन करते समय अगर लेजर बनाना है तो कैसे बना सकते हैं, या फिर आप सब लेजर्स पहले बनाओ जैसे अभी हम लोग ने बनाया, या फिर वाइल क्रिएटिंग वाउचर एंट्रीज ऑल्सो हम लोग बना सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल वाउचर एंट्रीज के टाइम पे लेजर कैसे बनाता है दैट आई विल शो यू वाइल क्रिएटिंग दिस ट्रांजैक्शन, ओके। नाउ विल जस्ट स्टार्ट डूइंग द ट्रांजैक्शन। अभी हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं। ट्रांजैक्शन मीन्स व्हाट, वाउचर एंट्रीज। सो अभी लेजर हो गया, तो आई विल प्रेस एस्केप बटन एंड आई विल क्विट, येस। नाउ सी, अगर मुझे मेन गेटवे ऑफ टैली में आना है तो मुझे कितना बार एस्केप दबाना पड़ेगा, अकाउंट्स इन्फो के लिए एक एस्केप एंड फिर वो गेटवे ऑफ टैली के लिए, ओके। सो आई विल प्रेस वन एस्केप एंड अगेन वन एस्केप, ओके। सो अभी हम लोग गेटवे ऑफ टैली में आ गए, ओके। टू एस्केप मैंने प्रेस करके हम लोग आ गए।
अभी हमको क्या करना है, अकाउंटिंग वाउचर्स पे क्लिक करना है. सो आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन अकाउंटिंग वाउचर्स. नाउ let us see the first transaction. It is on 1st April 2019. तो फर्स्ट टू के लिए मुझे डेट चेंज नहीं करना है. हमेशा याद रखना डेट भी तभी चेंज करो जब आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज मिस्टर रविंद्र कुमार स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 5 लाख. तो यहाँ पे क्या हो गया, रविंद्र कुमार ने बिजनेस स्टार्ट किया. 1 सेकेंड. ओके, so here Mr. Ravindra Kumar started business with cash. So what started business? So यहाँ पे पेमेंट हो रहा है क्या, नहीं. हम लोग बिजनेस स्टार्ट करें तो हमको रिसीव्ड, हम लोग बिजनेस स्टार्ट करें सो इट विल बी रिसीव्ड. नाउ क्रेडिट. क्रेडिट क्या होगा, मिस्टर रविंद्र कुमार स्टार्टेड बिजनेस. यहाँ पे क्रेडिट क्या आने वाला है, कैपिटल अकाउंट पैसा दे रहा है कैश अकाउंट को. ओके, सो क्रेडिट अमाउंट किस कौन है, कैपिटल अकाउंट. सो वी विल प्लेस व्हाट, कैपिटल अकाउंट. सो सेलेक्ट कैपिटल अकाउंट. और कितना पैसा दिया, कितना अमाउंट दिया, 5 लाख. सो आई विल राइट हियर 5 लाख. ओके, देन प्रेस टैब. डीआर, डेबिट. डेबिट किसका अकाउंट होगा, कैश. सो किसके अकाउंट में जाने वाला है, ये कैश के अकाउंट में. सो कैश, सी कैश इज बाय डिफॉल्ट, सो आई विल जस्ट प्रेस कैश. तो बराबर है, कैश के अकाउंट में 5 लाख जो कैपिटल अकाउंट था वो कैश अकाउंट में आ गया. तो अभी कैश अकाउंट में कितना पैसा है, 5 लाख. ओके, सो हम लोग का फर्स्ट ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया. अगर आपको नरेशन लिखना है तो आप लिख सकते हो कंपनी, बीइंग कंपनी क्रिएटेड, बीइंग कंपनी क्रिएटेड. ओके, सो दैट ऑल्सो यू कैन राइट ट्रांजैक्शन नरेशन. ओके, यस, हम लोग का फर्स्ट एंट्री हो गया. Okay, now next transaction is purchase goods from Shraddha Steel works on credit 20,000. हम लोग ने गुड्स किससे परचेस किया है, श्रद्धा स्टील से. क्रेडिट पे, कैश पे नहीं, क्रेडिट पे किया है. तो यहाँ पे दो ही अकाउंट चलेंगे, ट्रांजैक्शन दोनों अकाउंट्स के बीच में चलने वाला है. यानी यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, मनी इज गोइंग फ्रॉम आवर कंपनी. बराबर है, हम लोग खरीद रहे हैं, बिटवाइज कंपनी खरीद रहे, तो पैसे किसके कंपनी से जा रहा है, बिटवाइज कंपनी से. और किसको मिल रहा है, श्रद्धा का स्टील को. याद रखना यहाँ पे जो होता है क्रेडिट गिवर एंड डेबिट रिसीवर, परचेस और सेल्स के टाइम पे ये उल्टा हो जाता है. यहाँ पे क्या हो जाता है, जो परचेस अकाउंट हो जाता है वो होता है डेबिट, और जो श्रद्धा स्टील हो जाएगा वो हो जाएगा क्रेडिट. ओके, क्योंकि अगर फिर भी अगर हम परचेस अकाउंट से पैसा दे रहे हैं तो भी श्रद्धा स्टील के पास पैसा आ रहा है. तो यहाँ पे जो रिसीवर एंड गिवर क्रेडिटेड एंड रिसीवर डेबिटेड होता है, लेकिन फॉर परचेस और सेल्स अकाउंट के टाइम पे हम लोग हमेशा एंट्रीज उल्टा करते हैं. ओके, यहाँ पे परचेस अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा और श्रद्धा स्टील क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा. ओके, सो वी विल डू दैट एंट्री. डेट, देयर इज नो नीड ऑफ चेंजिंग द डेट. लेकिन यहाँ पे परचेस कौन सा वाउचर, दिस ऑल आर द वाउचर्स. फ्रॉम दिस वी आर गोइंग टू प्रेस F9 बटन फॉर परचेस वाउचर. डेट इज सेम 1st अप्रैल 2019. सप्लायर्स इनवॉइस नंबर आपको नहीं दिया है, सो आप टैब प्रेस करो. पार्टी अकाउंट, यहाँ पे पार्टी कौन है, हम लोग किससे ले रहे हैं, श्रद्धा स्टील. सो आई विल सेलेक्ट श्रद्धा स्टील. देन ऑल दिस थिंग्स आर नॉट गिवन, सो वी विल जस्ट कम आउट ऑफ दिस. परचेस लेजर किसके अकाउंट, परचेस में. सॉरी, यहाँ पे डबल पी आया, स्पेलिंग मिस्टेक. सो आपको अगर चेंज करना है तो देखो यहाँ से हम लोग चेंज कर सकते हैं, Alt C प्रेस करके. Alt C प्रेस किया नहीं, लेकिन मुझे नया एंट्री नहीं करना है, मुझे चेंज करना है, तो मुझे बाहर निकलना पड़ेगा. नाउ लेट इट बी, स्पेलिंग मिस्टेक इज देयर, डबल पी लिखा है मैंने, लेकिन आप सिंगल पी लिखना. नेम ऑफ आइटम, अभी हम लोग ने कोई आइटम क्रिएट किया है क्या, नहीं, लेकिन यहाँ पे परचेस और सेल्स गुड्स का हो रहा है. ओके, सो यहाँ पे सी गुड्स, सो विल इफ यू वांट यू कैन क्रिएट द स्टॉक आइटम एज गुड. तो यहाँ पे आने के बाद मैंने स्टॉक आइटम तो क्रिएट नहीं किया था, लेकिन आप ट्रांजैक्शन के टाइम पे या वाउचर एंट्री के टाइम पे भी लेजर और स्टॉक आइटम क्रिएट कर सकते हो. तो क्या करना पड़ेगा, प्रेस Alt C. ओके, तो देखो स्टॉक आइटम क्रिएशन आ गया. वी विल जस्ट राइट गुड्स ओवर हियर. ओके, नथिंग एल्स. सो गुड्स आ गया. ओके, यहाँ पे गुड्स आ गया आइटम. नाउ कितने रुपीस में लिया था, 20,000. सो वी विल जस्ट डू द एंट्री, गुड्स कितने रुपीस में लिया था, 20,000. ओके, देन okay, so this also entry has been done. Okay, so
second entry also done. Now third, we will see third question, paid salary to office staff or to staff. So यहाँ पे सैलरी पे कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे पेमेंट वाउचर, कौन सा वाउचर आएगा, पेमेंट वाउचर, राइट, क्योंकि हम लोग सैलरी पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कैश अकाउंट से हम लोग सैलरी, अभी उन्होंने ये नहीं दिया कि चेक में कर रहे हैं या कैश से कर रहे हैं, तो वी विल अगर ऐसा मेंशन नहीं कि तो हम लोग कैश अकाउंट ही लेते हैं। तो कैश अकाउंट से पैसा किसको जा रहा है, कौन से अकाउंट में जा रहा है, सैलरी अकाउंट में। कैश अकाउंट से पैसा सैलरी अकाउंट में जा रहा है, तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट, और सैलरी अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। ओके, सो यहाँ पे गिवर कौन है, कैश अकाउंट, सो क्रेडिट कौन आएगा, कैश अकाउंट, और रिसीवर कौन है, सैलरी अकाउंट, तो सैलरी अकाउंट क्या आएगा, डेबिट। ओके, सो यहाँ पे हम लोग सेल्स अकाउंट, सॉरी नॉट सेल्स, सैलरी अकाउंट, DR सैलरी। ओके, सैलरी अकाउंट कितना पैसा दे रहे हैं हम लोग सैलरी में, 5000। सो 5000 कहाँ से जा रहा है, कैश अकाउंट से। ओके, सो कैश अकाउंट से जा रहा है 5000, हो गया। सी डेबिट और क्रेडिट, इफ व्हेन यू कैन सी लाइक दिस टाइप ऑफ एंट्री, डेबिट एंड क्रेडिट, so this is called as what, double entry. Okay, even if you want you can do the single entry, but this is called as double entry. Double entry is very easy to understand, debit और credit. हाँ, ओके, सो दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि कहाँ से कौन से अकाउंट से कहाँ पे जा रहा है। सो ऑलवेज ट्राई टू डू द डबल एंट्री सिस्टम ओनली। ओके, सो डबल एंट्री ही करना चाहिए। देन प्रेस टैब। ओके, सो दिस एंट्री इज ऑल्सो डन। नेक्स्ट वन इज व्हाट, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑफ इंडिया 50,000। अभी जो भी ट्रांजैक्शन अगर हम लोग बैंक में कैश डिपॉजिट कर रहे हैं या हम लोग निकाल रहे हैं, ओके, सो विड्रॉइंग और डिपॉजिटिंग कैश इन बैंक, दैट इज रिलेटेड टू विच वाउचर, कॉन्ट्रा वाउचर, तो हम लोग को कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री करना है। ओके, वन मिस्टेक आई हैव डन, हम लोग ने डेट नहीं चेंज किया, सैलरी को पेड सैलरी टू स्टाफ 2 मई को किया है, वो हम लोग ने चेंज नहीं किया है, तो वो कैसे चेंज करेंगे, वंस द एंट्री इज डन आपको चेंज करना है, तो आपको कैसे करना पड़ता है, दैट आई विल शो यू। कम आउट ऑफ दिस बाय प्रेसिंग एस्केप बटन। ओके, नाउ दिस इज द गेटवे ऑफ टैली, यो यू कैन सी द डिस्प्ले बटन, आपको डिस्प्ले बटन दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक करो, डे बुक में जाओ। डे बुक में आपको कौन सा वाला चाहिए था, किसका एंट्री नहीं किया मैंने, डेट नहीं चेंज किया, सैलरी अकाउंट, सो आई चेंज द डेट, यहाँ पे डेट F2 आप प्रेस करो डेट चेंज करने के लिए। सो व्हाट इज द डेट, what was the date, let me check the date, it is 2nd May 2019, so I'll write 2/5/2019. okay, date has been changed. Now we will just save this. and just come out of this. okay, so हम लोग ने डेट चेंज कर दिया। सो व्हाट वाज देयर, नाउ क्वेश्चन कौन सा कर रहे थे हम लोग, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑफ इंडिया, डेट इज 1st June. ओके, सो लेट अस चेंज द डेट फर्स्ट, F2 1st June 2019. okay, date has been changed. Now what we are doing, we are doing not payment, we are doing contra voucher. okay, contra voucher है वो। so now here हु इज क्रेडिट, हम लोग बैंक ऑफ इंडिया में पैसा डाल रहे हैं, वी आर डिपॉजिटिंग मनी, सी द क्वेश्चन, कैश डिपॉजिटेड, कैश अकाउंट से हम लोग पैसा बैंक ऑफ इंडिया में डाल रहे हैं, सो क्रेडिट क्या आ जाएगा, कैश अकाउंट। ओके, सो कैश अकाउंट इज व्हाट, गिवर, मीन्स ये पैसा दे रहा है बैंक ऑफ इंडिया को, सो यहाँ पे CR कौन रहेगा, कैश, कैश से पैसा जा रहा है, कितना जा रहा है, बैंक ऑफ इंडिया में हम लोग कितना डाल रहे हैं पैसा, सी 50,000। ओके, सो यहाँ पे 50,000। ओके, किसको दे रहे हैं, बैंक ऑफ इंडिया को। ओके, तो आ गया बैंक ऑफ इंडिया में। सो नाउ देखो करंट बैलेंस कितना है, 4,45,000। ओके, कैश में से जितना पैसा गया तो अभी बचा कितना, 4,45,000। कितना था स्टार्टिंग में, 5 लाख था, तो 5 लाख में से अभी कितना, 50,000 इसको गया, फिर 5,000 सैलरी को भी गया था, राइट। तो इस तरह से अभी कितना बचा है, 4,45,000। नाउ लेट्स मूव फर्दर, इसको भी हम लोग इसने बैंक ऑफ इंडिया में पैसे का ये पूछा है, सो नो नीड, ओके, एक्सेप्ट दिस, यस। सो कॉन्ट्रा वाउचर एंट्री हैज बीन डन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सोल्ड गुड्स टू राकेश एंटरप्राइज ऑन कैश, डेट भी चेंज करना है, 2nd June। सोल्ड गुड्स टू राकेश एंटरप्राइज,
हम लोग गुड्स सेल कर रहे हैं, किसको, राकेश एंटरप्राइज को, तो कैश में कितना, 25,500। ओके, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, राकेश एंटरप्राइज को हम लोग, यहाँ पे राकेश एंटरप्राइज ये पैसा दे रहा है। ओके, तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, सेल्स अकाउंट में से पैसा क्या हो रहा है, यहाँ पे सेल्स अकाउंट का पैसा किसको जा रहा है, कैश अकाउंट को जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे क्रेडिट विल बी सेल्स अकाउंट एंड डेबिट विल बी कैश अकाउंट। ओके, सोल्ड गुड्स टू राकेश एंटरप्राइज ऑन कैश। सो यहाँ पे सेल्स अकाउंट आपको करना है, सो वी विल प्रेस F8 and we will change the date. What is the date? Let me see the date. Date is 2nd June. Yeah, date is there, 2nd June. Reference number is not given. Then party account. Who is party account name? What is the party account name? यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम है श्रद्धा स्टील, बराबर है। श्रद्धा स्टील को सेलेक्ट करो, ये सब इन्फॉर्मेशन हमको नहीं दिया है, सो विल मूव ऑन फर्दर। सेल्स लेजर, सेल्स अकाउंट। ओके, सो सेल्स अकाउंट, यहाँ पे क्या सेल कर रहे हैं हम लोग, वो नहीं दिया है, गुड्स। सो गुड अकाउंट, गुड स्टॉक इज ऑलरेडी देयर, सो हम लोग जस्ट गुड्स प्रेस करेंगे एंड विल सेलेक्ट दैट। कितने रुपीज़ में सेल कर रहे हैं, 25,500, सो 25,500। ओके, सो लाइकवाइज finished, we have created this also transaction, accepted. Okay, this also done. Now see the next one is purchased machinery for 10,000 on 2nd July। 2nd July को मशीनरी परचेज किया, कौन, किस कंपनी ने, बिटवाइज कंपनी ने। ओके, फॉर हाउ मेनी रुपीज, 10,000। सो मशीनरी यहाँ पे स्टॉक आइटम क्रिएट करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग परचेज कर रहे हैं मशीनरी कैश अकाउंट से। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, कैश अकाउंट से पैसा किस में जा रहा है, कैश अकाउंट से परचेस अकाउंट में। ओके, सो यहाँ पे परचेस कर रहे हैं तो हम लोग कैश अकाउंट से पैसा परचेस अकाउंट में डालने वाले हैं। सो ट्रांजैक्शन एंट्री हम लोग कैसा करेंगे, यहाँ पे परचेस, क्लिक ऑन परचेस, F9, देन वी हैव टू चेंज द डेट, इट इज 2nd July। सो डेट इज 2nd July 2019। ओके, देन व्हाट इज द पार्टी अकाउंट नेम, कैश। ओके, सो हम लोग कैश अकाउंट से कर रहे हैं, सो आई विल राइट, आई विल क्लिक कैश एंड परचेस अकाउंट, परचेस लीजिए, परचेस अकाउंट में गया। स्टॉक आइटम मशीनरी, मशीनरी इज नॉट क्रिएटेड, सो आई विल प्रेस Alt+C। यहाँ पे हम लोग मशीनरी बनाएंगे, मशीनरी। ओके, देन सो मशीनरी इज क्रिएटेड, कितने रुपीज में लिया था, परचेस कितने रुपीज में किया, 10,000, सो आई राइट हियर 10,000। ओके, सो सी कैश अकाउंट से हम लोग पैसा दे रहे किसको, परचेस अकाउंट को। ओके, सो लाइकवाइज वी हैव क्रिएटेड दिस ऑल्सो, सो दिस ऑल्सो ट्रांजैक्शन हैज बीन क्रिएटेड। नेक्स्ट, लास्ट वन, रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन कैश डिपॉजिटेड इन बैंक ऑफ इंडिया। सो बैंक ऑफ इंडिया में जो भी इंटरेस्ट हमको मिला था उसका कैश हम लोग को मिला, रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन कैश, कैश पे हम लोग को उसका इंटरेस्ट मिला। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट हो जाता है और कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ओके, सो इंटरेस्ट अकाउंट विल बी क्रेडिटेड एंड कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड। और रिसीव्ड है तो ये रिसीट में आएगा, जो भी रिसीव्ड करते हैं और जो भी पे करते हैं वो पेमेंट में आता है, और जो रिसीव करते हैं वो रिसिप्ट में आएगा। ओके, सो रिसीव्ड मीन्स ये वाउचर एंट्री कौन सा रहेगा, दिस वाउचर एंट्री विल बी इन रिसिप्ट, और सेकेंड डेट भी चेंज करना है, 2nd December। ओके, एंड वी हैव गॉट द इंटरेस्ट ऑफ 2,000। सो व्हाट वी विल डू द एंट्री नाउ। सी यहाँ पे आपको रिसिप्ट आएगा। ओके, रिसिप्ट वाउचर, तो रिसिप्ट वाउचर में आपको क्या करना है, इंटरेस्ट अकाउंट, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट अकाउंट है क्या, नहीं। नाउ सी आई एम गोइंग टू शो यू हाउ टू क्रिएट इंटरेस्ट मीन्स लेजर कैसे क्रिएट करेंगे वाउचर एंट्री के टाइम। अगर कोई लेजर नहीं है तो पूरे स्क्रीन से बाहर निकलने का जरूरत नहीं है आपको। वाउचर एंट्री के टाइम को अगर आपको लगा कि ये लेजर मैंने बनाया नहीं तो मुझे फिर से वापस जाना पड़ेगा बाहर, तो नो नीड, यहाँ पे आप लेजर बना सकते हो। कैसे करोगे, Alt+C, गो इन Alt+C एंड क्रिएट द लेजर। तो मुझे किसके लिए लेजर बनाना है, इंटरेस्ट अकाउंट का। इंटरेस्ट अकाउंट का हम लोग ने लेजर नहीं बनाया था, सो आई विल क्रिएट दिस। इंटरेस्ट अकाउंट क्या रहता है, इनडायरेक्ट इनकम। ओके, सो इंटरेस्ट जो भी मिलेगा उसके लिए हम लोग इनडायरेक्ट इनकम बोलते हैं। इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, ऑल दिस थिंग्स विल बी व्हाट, इनडायरेक्ट इनकम्स।
सो इनडायरेक्ट इनकम्स, सो we have created, यहाँ पे आ गया इंटरेस्ट अकाउंट. ओके, सो इंटरेस्ट अकाउंट इज क्रेडिट. तो कितना अमाउंट क्रेडिट? 2000 आई थिंक, राइट? 2000. सो कहाँ पे जाएगा वो? कैश अकाउंट में. ओके, सो ऑन कैश, सो इट विल बी कैश. सो लाइकवाइज वी हैव क्रिएटेड दिस मच एंट्रीज. ओके, सो यहाँ पे इसको एक्सेप्ट कर लिया, हो गया. सो आई होप सारे एंट्रीज हम लोग ने कर दिए हैं बराबर से. ओके, ऑल एंट्रीज वी हैव डन. ओके, डेट चेंज नहीं किया था शायद से. सो फॉर डेट, फॉर अभी तो हम लोग का सब एंट्रीज हो गया है. नाउ वी विल जस्ट गो एंड चेंज द डेट. अगर किसी का डेट नहीं चेंज किया है तो हम लोग डेट देख लेते हैं. फॉर दिस यू हैव टू कम आउट, एस्केप बटन प्रेस करना है, गो इन डिस्प्ले, डे बुक. ओके, सो रिसिप्ट का डेट नहीं चेंज किया था, राइट? इसका 12th था. आई विल क्लिक ऑन दिस, आई विल चेंज द डेट. F2 क्या था? 2nd December 2019. Okay, so let me check the date. Yes, 2nd December. So यहाँ पे डेट चेंज हो गया. Control A. I'm coming out of this. Okay, so see, let us see all the transactions from which date? From 1st April 2019 to लास्ट हम लोगों ने दिसंबर का किया था, राइट? सो 12th 2019. सारे एंट्रीज दिखा रहा है 1st अप्रैल से लेके दिसंबर तक हम लोग ने जितने भी एंट्री किए थे, राइट? तो हाँ, हमारे क्वेश्चन में कितने ट्रांजेक्शन्स थे? फर्स्ट वी विल काउंट दैट वन. सी 1 2 3 4 5 6 7, राइट? 7 ट्रांजेक्शन. सो लेट अस चेक कि हम लोग ने 7 एंट्रीज किए हैं कि नहीं. सो सी 1 2 3 4 5 6 7. ओके, सो परचेस के 2 है, सेवन एंट्रीज आते. ओके, सो नाउ लेट अस चेक. तो ये पूरे एंट्रीज हो गए हम लोग के. रिसिप्ट, परचेस, पेमेंट. ये 1st अप्रैल को 2 काम किया था. पहले हम लोग ने क्या किया था? कैपिटल मीन्स कंपनी शुरू किया था बिटवाइज. सो उसके लिए हम लोग ने कैपिटल अकाउंट का किया था. फिर हम लोग ने गुड्स बाय किए थे श्रद्धा स्टील से, राइट? फिर उसके लिए हम लोग ने परचेस किया था. फिर हम लोग ने ऑफिस सैलरी पे किया था, उसके लिए हम लोग ने पेमेंट किया. फिर हम लोग ने कैश डिपॉजिट किया था, राइट? कैश डिपॉजिट किया था बैंक में. सो वो भी यहाँ पे कॉन्ट्रा वाउचर. फिर हम लोग ने क्या किया? श्रद्धा स्टील. श्रद्धा स्टील, फिर से श्रद्धा स्टील क्यों आया? यहाँ पे कैश अकाउंट चाहिए था. ओके, ये जो है ये आपने गलत. ओके, सो आई क्लिक ऑन दिस. दिस पार्टी नेम इज नॉट श्रद्धा स्टील. ये तो कैश अकाउंट आएगा क्योंकि हम लोग ने कैश से पैसा दिया था, राइट? सो दिस इज रॉन्ग. आई विल जस्ट डिलीट दिस. कैश, यहाँ पे कैश सेलेक्ट करना है आपको. ओके, कंपनी यहाँ पे जो सेल्स था वो कैश अकाउंट से हम लोग सेल्स अकाउंट में पैसा ये कर रहे थे, राइट? हम लोग सेल किया तो कैश अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो जाएगा. ओके, तो पार्टीज कैश अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट से वो जा रहा है. ओके, सो विल जस्ट सेव दिस. कंट्रोल A. ओके, नाउ दिस इज करेक्ट. सेल्स. So this is also done. Then what we have done? Purchased machinery. Okay, so हम लोग ने परचेस किया मशीनरी कैश से. सो यहाँ पे परचेस अकाउंट आ गया. देन इंटरेस्ट अकाउंट, सॉरी, परचेस हो गया. देन इंटरेस्ट, लास्ट वन इज इंटरेस्ट रिसिप्ट. सो लाइकवाइज वी हैव क्रिएटेड ऑल द 7 एंट्रीज, राइट? सो अगर अभी एग्जाम में उन्होंने बोला है कि हमको इसका पूरा आपको डे बुक का प्रिंट आउट देना है. क्वेश्चन में क्या बोला है देखो, लेट अस सी. आपको डे बुक का प्रिंट आउट चाहिए. अगर उन्होंने बोला सो डे बुक का प्रिंट आउट चाहिए तो ये ही डे बुक है. डे बुक में जितना एंट्रीज किया आपको सेट करना पड़ेगा, डेट और आपको पूरा एंट्रीज एक साथ दिखाना पड़ेगा और इसको प्रिंट करना है. सो ओके, क्लिक करो प्रिंट पे और ये प्रिंट हो जाएगा. तो ये है डे बुक.
अगर उन्हें कहा कि हमें कैश का एंट्री, सैलरी का, सेल्स का एंट्री या परचेस वाउचर का, इसमें से कोई भी वाउचर का एंट्री मुझे प्रिंट करके दो, तो आपको इसमें से कोई भी वाउचर का एंट्री प्रिंट करना पड़ेगा। लेकिन आपको ऐसा नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन है वही क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है। सो ये क्वेश्चन ऐसे कैसे आएगा, तो आपको सिर्फ इसमें, ये क्वेश्चन में सिर्फ यही जो एंट्री है डे बुक का, यहाँ पे प्रिंट करना है। ओके तो हम लोग जो क्वेश्चन में वही करेंगे, नो कंफ्यूजन। सो कम आउट ऑफ दिस, इसको आउट बाहर निकलने के लिए एस्केप बटन है। ओके सो नेक्स्ट हमको क्या प्रिंट करना है, लेट अस सी इन द क्वेश्चन। नेक्स्ट हमको ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। सो ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रायल बैलेंस यहाँ पे ही है। लेट अस चेक द ट्रायल बैलेंस। सो दिस इज अ ट्रायल बैलेंस, इसका भी आपको यहाँ पे प्रिंट ऑप्शन है, प्रिंट करना है ओके एग्जाम के लिए। सो कम आउट ऑफ दिस, देन इज व्हाट, बैलेंस शीट। सो आई जस्ट प्रेस एस्केप बटन वंस, यहाँ पे बैलेंस शीट है। सो आपको बैलेंस शीट, ये इसका भी आपको क्या करना है, प्रिंट करना है। सो यहाँ पे प्रिंट ऑप्शन है, इसका भी आप प्रिंट कर सकते हो। कम अगेन बैक, प्रॉफिट एंड लॉस, उसके नीचे ही आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी है। सो विल क्लिक ऑन दैट एंड दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो क्लिक ऑन प्रिंट बटन और ये इसका प्रिंट आउट आप ले सकते हो। ओके सो हम लोग ने सब इसका देखा, जितने भी क्वेश्चन में बोला था, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस और डे बुक। डिस्प्ले के अंदर आपको ये दो मिल जाएंगे, ट्रायल बैलेंस और डे बुक। ओके सो इन सब का आप प्रिंट आउट लो। कोई भी यहाँ पे एक ही वाउचर एंट्री है, तो आपको डेट सेट करना है फर्स्ट से लेके, क्योंकि आपको सारे एंट्रीज एक साथ दिखाने हैं। तो आपको फर्स्ट डेट 1 अप्रैल 2019 से लेके हम लोग ने लास्ट ट्रांजेक्शन 2 दिसंबर तक किया था, वो चेंज करके आपको पूरे ट्रांजेक्शन्स एक साथ दिखाने हैं। Okay, so we have completed this practical. So remember that you have to perform or you have to study this practical only. आपको यही practical study करना है for this accounting chapter. Okay, for this computerized accounting chapter, you have to perform or you have to study only this practical. Only this practical is going to come in the exam as D's. क्वेश्चन कोई भी चेंज नहीं होता है, जो क्वेश्चंस आपको दिए हैं वो क्वेश्चन वैसे के वैसे ही एग्जाम में आता है। Okay, so this is all for today. So see you in the next lecture. Till then, take care, be safe and enjoy learning.